Hello students, myself Rahul Mishra and today we will discuss the new chapter Chemical Kinetics. What is Chemical Kinetics? So listen, it is the branch of physical chemistry in which we study about the rate or speed of any chemical reaction. It means ये फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड या उसके रेट के बारे में स्टडी करते हैं. सो लिसन, फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव एनी केमिकल रिएक्शन A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस D. इट मीन्स अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस D है, देन A एंड B आर रिएक्टेंट एंड C एंड D आर प्रोडक्ट. तो इसमें रिएक्टेंट जो है वो A और B हैं और प्रोडक्ट क्या है, C और D. तो अगर हम इस केमिकल रिएक्शन की स्पीड की बात करते हैं कि ये कितनी तेज चल रही है या कितनी धीमे चल रही है या ये कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है या एवरेज स्पीड से चल रही है, देन लिसन, तो हम लोग जो स्पीड का डिस्कशन जिस फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच में करते हैं, देन दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स. तो उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स. सो लिसन, काइनेटिक जनरली वर्ड इज यूज्ड फॉर मोशन. जो काइनेटिक वर्ड होता है वो जनरली मोशन या गति से संबंधित है. गति मीन्स स्पीड से संबंधित हो गया. इट इज रिलेटेड विद स्पीड ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन. सो लिसन, केमिकल काइनेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about rate or speed of any chemical reaction. So listen, now we will discuss the second topic, types of chemical reaction on the basis of rate. It means chemical reaction कितने प्रकार की होती हैं उसके रेट या स्पीड के आधार पर. It means रेट या स्पीड के आधार पर केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं. सो लिसन, केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप. फर्स्ट वन इज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, सेकेंड वन इज मॉडरेट रिएक्शन एंड थर्ड वन इज स्लो रिएक्शन. Instantaneous reaction means it is also called as fast reactions. It means instantaneous means what? Instantaneous means क्षण. It means ऐसी केमिकल रिएक्शन जो क्षण में हो जाती हैं, मीन्स पल में हो जाए या सेकेंड्स में हो जाए, then that chemical reaction are called as instantaneous chemical reaction or fast reaction. It means ऐसी रिएक्शंस जो सेकेंड्स में हो जाती हैं, then that chemical reactions are called as instantaneous or fast reaction. So listen, for example, we take an example. First example is neutralization reaction. So listen, this is neutralization reaction. When acid reacts with base, then it will give salt and water. So this is an example of neutralization reaction. So listen, it is an example of instantaneous reaction because neutralization reaction occurs in few seconds. It means जो neutralization reaction है वो कुछ seconds में ही हो जाती है. So listen, जब हम किसी एसिड को बेस में ऐड करते हैं तो तुरंत हमें सॉल्ट और वाटर मिल जाता है. It means this reaction occurs very fast in an instant. It means ये रिएक्शन बहुत तेजी से होती है और कुछ इंस्टेंट में ही कंप्लीट हो जाती है या कुछ क्षण में ही कंप्लीट हो जाती है. सो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. इसलिए ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का. नाउ सेकेंड एग्जांपल इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. AgNO3 plus HCl, AgNO3 plus NaCl, it will form AgCl plus NaNO3. So listen, this chemical reaction is called as
precipitation reaction and it is an example of instantaneous reaction due to the formation of white precipitate or white PPT of AgCl. This reaction is called as precipitation reaction and this precipitation reaction occurs very fast. It means ये जो precipitation reaction है ये भी बहुत तेजी से होती है. जैसे ही हम AgNO3 solution को ऐड करते हैं किसमें, सोडियम क्लोराइड या NaCl solution में, तुरंत ही हमें व्हाइट कलर का precipitate बनता हुआ दिखने लगता है. And this reaction is called as precipitation reaction and this reaction occurs very fast in few seconds. So this is an example of instantaneous reaction also. इसलिए ये reaction instantaneous reaction का भी example है. Now second type of reaction which is classified on the basis of rate and it is moderate reaction. So what is moderate reaction? So those reaction which occurs in few hours. It means ऐसी reaction जो कुछ hours में complete होती हैं and that type of reaction are called as moderate reaction. For example, digestion of food. Digestion of food. It means जो food का digestion है वो कुछ time लेता है, कुछ hours लेता है. So this is a type of moderate reaction. Second example, it is photosynthesis in plants. It means जो photosynthesis होती है किसमें, plants में, it is also an example of moderate reaction because it will take some hours. क्योंकि ये photosynthesis जो होती है plant में ये भी कुछ घंटे में complete होती है. Now last type of reaction which is classified on the basis of rate or speed of any chemical reaction and it is slow reaction. So it is clear from its name, slow reaction are those reaction which occurs very slowly. It means which occurs in a month, or we can say it means those reaction which take some months for completion. It means ऐसी reaction जो कुछ महीने ले लेती हैं या कुछ बहुत ज्यादा लंबा टाइम ले लेती हैं कंप्लीट होने के लिए, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती हैं स्लो रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन. सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो रिएक्शन. रस्टिंग मीन्स जंग लगना. रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स लोहे पर जंग लगना. इट मीन्स अगर हम किसी आयरन रॉड को एटमॉस्फेयर, ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो कुछ महीने बाद या कुछ कई दिनों बाद उसमें क्या होती है, जंग लगना स्टार्ट हो जाती है. सो लिसन, दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो. सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो रिएक्शन. सो लिसन, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट और स्पीड. इट मीन्स स्पीड या रेट के आधार पर केमिकल रिएक्शन को कितनी तरह से क्लासिफाई किया गया है. 3 तरह से, इंस्टेंटेनियस, मॉडरेट और स्लो रिएक्शन. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द रेट ऑफ any chemical reaction. Rate of reaction. So what is rate? Rate is generally speed of reaction. It means किसी reaction की speed. It means किसी reaction का rate जो है वो क्या बोला जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन. सो लिसन, किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या है, वो कितनी तेज चल रही है या कितनी धीमे चल रही है, देन इट इज कैलकुलेटेड बाय रेट ऑफ रिएक्शन.
इट मीन्स किसी रिएक्शन की रेट या स्पीड को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से कैलकुलेट करते हैं. एज वी हैव डिस्कस्ड इन फिजिक्स, वी ऑल नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. जो स्पीड होती है वो हम लोग फिजिक्स में जनरली क्या पढ़ते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो लिसन, व्हेन एनी पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, जब कोई पर्सन ए से बी पॉइंट पर जा रहा है तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस अगर डी है और ये टी टाइम में ट्रेवल कर रहा है, तो स्पीड जो होती है इस पर्सन की हम लोग कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम. इट मीन्स जो भी फैक्टर आपका चेंज हो रहा है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे. एंड लिसन, इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन we will discuss what is rate of reaction or speed of reaction. So listen, in case of chemical reaction, for example A to B, अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है कैपिटल A to B, इट मीन्स कैपिटल A रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कैपिटल B. हमने माना कैपिटल A रिएक्टेंट को हमने हीट किया तो हमें क्या मिला, कैपिटल B मिला. तो होता क्या है, सो लिसन, रिएक्टेंट जो होगा वो धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ घटेगी, क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे किसमें चेंज होगा, प्रोडक्ट में. सो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इट मीन्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में घटेगी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा बन रहा है और रिएक्टेंट हमारा कम हो रहा है. इट मीन्स केमिकल रिएक्शन के केस में हम कह सकते हैं यहां डिस्टेंस नहीं चेंज होती, यहां चेंज होती है क्या, कंसंट्रेशन. इट मीन्स वी कैन से व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन. सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी चेंज इन, सो रेट ऑफ रिएक्शन, it is small r, it is equal to change in the concentration of reactant or product divided by time taken. इट मीन्स अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट कैपिटल ए है और उसको हीट करने पर कैपिटल बी बन रहा है, तो होगा क्या, कैपिटल ए रिएक्टेंट की क्वांटिटी या कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटेगी और कैपिटल बी प्रोडक्ट की क्वांटिटी धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ेगी. इट मीन्स हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन के केस में होता क्या है, कंसंट्रेशन चेंज होती है, ना कि डिस्टेंस. सो लिसन, सो रेट आर स्पीड ऑफ रिएक्शन, इसी को स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पीड ऑफ रिएक्शन. सो स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. इट मीन्स यहाँ क्या फैक्टर चेंज होगा, यहाँ कंसंट्रेशन चेंज होगी, तो न्यूमरेटर में हम लोग कंसंट्रेशन रखेंगे डिवाइडेड बाय टाइम. सो लिसन, इट इज द स्पीड ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन. So this is the formula for the rate or speed of any chemical reaction. So listen, rate is represented by small r. Rate of reaction को small r से represent किया जाता है. If you have any chemical reaction, capital R gives out capital P. It means अगर हमारे पास कोई chemical reaction capital R to capital P है, it means reactant से बन रहा है प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, टाइम के साथ साथ घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ेगी. इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन
can be written as delta C R divided by delta T. It means what is this? अगर हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो क्या होगा? इट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. एंड लिसन, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इज डिनोटेड एज नेगेटिव साइन, and this negative sign represents the concentration of reactant. The concentration of reactant decreases with respect to time. It means जो rate of reaction with respect to reactant अगर हमें लिखना है, so the rate of reaction with respect to reactant, अगर हम reactant के respect में rate of reaction लिखें, then it will be what? Minus delta CR upon delta T. So minus change in the concentration of reactant divided by time taken. So this negative sign represents that the concentration of reactant decreases with respect to time. तो ये जो नेगेटिव साइन आता है ये क्या शो करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या हो रही है, घट रही है टाइम के साथ साथ. इट मीन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, घटती जाएगी. सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इट शोज दिस नेगेटिव साइन. तो ये शो होता है किसके कारण? इस नेगेटिव साइन के कारण. नाउ व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट. अब हम बात करते हैं किसकी? रेट ऑफ रिएक्शन with respect to product. So it will be equal to plus delta Cp upon delta T. Why you take plus delta Cp upon delta T? What is this? This is change in the concentration of product. P means product divided by time taken. It means what is the rate of reaction with respect to product? It is the change in the concentration of product with respect to time taken. It means हम कह सकते हैं किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में उसे ही क्या कहेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट. एंड इट इज डिनोटेड एज पॉजिटिव साइन. इसको पॉजिटिव साइन से क्यों लिया जाता है? बिकॉज दिस पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज. The concentration of product increases with respect to time. क्योंकि टाइम के साथ साथ जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या करेगी? बढ़ेगी. तो ये पॉजिटिव साइन यही रिप्रेजेंट करता है. नाउ वी विल डिस्कस the average. Now we will discuss the types of rate of reaction. Types of rate of reaction. अब हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स के बारे में. सो लिसन, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप. रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दो तरह का होता है. सो लिसन, फर्स्ट वन इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन and second one is instantaneous rate of reaction. ROR means rate of reaction. So what is average rate of reaction? So average rate of reaction, generally we have studied it. So R, average rate of reaction, it is equal to average rate of reaction small r, it is equal to delta C upon delta T.
It means change in the concentration of reactant or product with respect to time taken. So listen, this is the average rate of reaction where delta T is large. It means अगर हमें किसी दो पॉइंट के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन की बात करनी हो तो हम किसकी बात करते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की. It is equal to change in the concentration of reactant or product with respect to time taken. So listen, as we all know that the concentration of reactant, this is the concentration of reactant, decreases with respect to time. It means your जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, यू कैन सी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज. पहले टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन हमारी ये थी. अब टाइम हमारा मान लिया मैंने 1 सेकेंड हो गया तो कंसंट्रेशन ये हो गई. अब हमने टाइम मान लिया 2 सेकेंड हो गया तो कंसंट्रेशन हमारी ये हो गई. 3 सेकेंड पर कंसंट्रेशन ये हो गई. इट मीन्स हम देख सकते हैं टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है कंसंट्रेशन वैसे वैसे ही क्या हो रही है? घट रही है. और ये ग्राफ भी कैसा है? डिक्रीजिंग है. इट मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या होगी? घटेगी. सो लिसन, अगर हमें किन्हीं दो टाइम इंटरवल के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो हम लोग निकालते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. यहां पर जो डेल्टा टी होता है वो लार्ज होता है. वो क्या होता है? लार्ज होता है. इट मीन्स डेल्टा टी हमारा कुछ ना कुछ क्या होगा? टाइम पीरियड होगा किन्हीं दो पर्टिकुलर टाइम के बीच. सो लिसन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, it is written with respect to average rate of reaction is written with respect to reactant. It is small r equal to delta C minus delta CR upon delta T. अगर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो वो क्या आएगा? माइनस डेल्टा CR अपॉन डेल्टा T, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जैसा कि अभी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. एंड लिसन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट इट विल बी इक्वल टू R इज इक्वल टू प्लस delta Cp upon delta T. This is the average rate of reaction with respect to product. But what is instantaneous rate of reaction? लेकिन instantaneous rate of reaction क्या है? So rate of reaction at any instant. It means किसी instant पे जो rate of reaction है वो कितना है? And that rate of reaction is called as instantaneous rate of reaction. It means किसी क्षण पर, ना कि दो पर्टिकुलर टाइम के बीच की बात होगी, अब किसी क्षण की बात होगी. It means किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? Then that rate of reaction is called as instantaneous rate of reaction. अभी तक हम क्या करते थे? जो डेल्टा टी था वो लार्ज था तो हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते थे. बट अभी हम मान लीजिए 1 सेकेंड और 1.1 सेकेंड की बात करें, इन दो इंटरवल के बीच की बात करें तो जो डेल्टा टी होगा इट विल बी व्हाट? 1.1 माइनस 1, इट मीन 0.1. इट मीन जो डेल्टा टी है वो इस बार क्या हो जाएगा? बहुत स्मॉल हो जाएगा. इट मीन्स जो
एवरेज रेट था वो बन जाएगा इंस्टेंटेनियस। क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस। इट मीन्स जब डेल्टा टी बहुत स्मॉल हो, इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है, देन तब जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ना बोल के क्या बोल देते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इट मीन्स वो दो टाइम के बीच एवरेज रेट की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये अगर 1 सेकेंड और 1.1 सेकेंड की हम बात करें तो ये दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा है। इट मीन्स जो हमारे दो टाइम थे वो लगभग एक ही टाइम हो गया है, वो कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ही हो गया है या कोई पर्टिकुलर क्षण ही हो गया है। तो उस टाइम जो रेट में चेंज होगा उसे ही क्या बोलेंगे? उस क्षण में जो रेट का चेंज होगा उसे ही क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, it is denoted as small r and it is equal to minus dCr upon dt. It means this is the instantaneous rate of reaction with respect to reactant. ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है? रिएक्टेंट है। एंड लिसन, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर विल बी प्लस dCp अपॉन dt। यहां स्मॉल डी क्यों यूज किया गया है? बिकॉज स्मॉल डी मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। अगर कंसंट्रेशन में जो चेंज है और टाइम में जो चेंज है वो अगर बहुत छोटा है तो हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ना बोल के क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो लिसन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू माइनस dCr अपॉन dt। मीन्स स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम and rate of instantaneous rate of reaction with respect to product क्या हो जाएगा? It will be equal to small change in product upon small change in time। ये हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी? घटेगी टाइम के साथ साथ। और ये हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंसंट्रेशन जो होगी प्रोडक्ट की वो टाइम के साथ साथ बढ़ेगी। सो लिसन, इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है, देन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के। इट मीन्स अगर डेल्टा टी जो टाइम गैप है वो अगर डेल्टा टी, ये डेल्टा टी पहले लार्ज था, बट अगर हम किन्हीं दो पास टाइम की बात कर लेंगे, 1 और 1.1 सेकेंड की बात कर लें, तो ये जो टाइम होगा डेल्टा टी ये बहुत स्मॉल होगा। एंड लिसन, दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंट। तो ये एक क्षण की तरह काम करेगा, यह एक इंस्टेंट की तरह काम करेगा। तो इस क्षण या इस इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसे ही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। एंड लिसन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय dC by dt, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। अगर हमें विद रिस्पेक्ट